Hello friends, welcome back to my YouTube channel English with Rimjim Kinsaria. I hope you are all healthy and safe. Today we are going to have a look on the summary of the essay, George Orwell's famous essay, Shooting an Elephant. Shooting an elephant is very very important from the point of view of exams. So let's have a look on its summary. It is very important. Essay. Shooting an Elephant is an essay written by British novelist and critic George Orwell. In the opening of the essay, Orwell explains that he is against to the British colonialism in Burma. He even hints that he is in favor of Burmese people, as the people of Burma hate the British Empire. Thus, not only the British Empire but as well Orwell also, and because Orwell served as a police officer, as we all know in Burma they generally mock him and don't miss opportunities to laugh at him. Thus he himself sometimes resents the Burmese people. The whole essay focuses around the event of a day when he comes to know about an elephant who has broken its chain and creating violence. Okay, and the elephant is rushing through a bazaar creating havoc, and in order to see what's happening, Orwell sets out with a small rifle. He even says he has no intention to kill the elephant. जैसे कि हम इस चीज से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ स्मॉल राइफल जो है अपने साथ लिए, क्योंकि ही डजंट हैव एनी इंटेंशन, he didn't have any intention to kill the elephant, a huge, or you can say a massive animal. Or he observes the havoc created by the massive animal. He has not only trampled grass huts and turned over a garbage, moreover he has killed a मैन. यानी कि ना सिर्फ वो हैवॉक क्रिएट कर रहा है, ना सिर्फ वो अनकंट्रोल्ड है, मोरओवर उसने एक इंसान को भी मार दिया है उस हाथी ने. ठीक है. देन ऑरवेल सेंड्स फॉर एन एलिफेंट राइफल. फिर वहां आके जब वो कंडीशन देखता है कि क्या हैवॉक क्रिएट कर रखा है, क्या कितना अनकंट्रोल्ड है वो एनिमल, तब जाके वो एलिफेंट राइफल मंगाता है. और वो भी सिर्फ इसलिए, उसका इंटेंशन ये नहीं था हाथी को मारना, उसका इंटेंशन नहीं था फ्रेंड्स, उसको सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसने वो एलिफेंट राइफल मंगाई थी. बट ही इज नॉट विलिंग टू किल इट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. He explains that he only wants to defend himself from the animal. As soon as he sees the elephant, he instantly feels that it would be wrong to kill it. He even describes the beauty and great value of animal. If he will shoot him, it would be like murder. अगर वो उसको शूट करता है तो वो ये फील करता है कि एक मर्डर होगा ये, अगर मैं उसको शूट करता हूं तो. But when he notices the crowd, at least of 2000 people, as we all know, जब भी कोई ऐसा एनिमल जो है जो अनकंट्रोल्ड है या फिर नॉर्मल भी है, या एज वी ऑल नो कि कोई जंगल से किसी फॉरेस्ट से आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक मैसिव क्राउड इकट्ठी कर लेते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं उसको देखने के लिए, उस स्पेक्टेकल को देखने के लिए. तो ऐसे ही वहां पे वो बोल रहा है कि लगभग 2000 लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं उस चीज को देखने के लिए. ही फील्स देयर आईज ऑन हिम एंड देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम एज अ पुलिस ऑफिसर. एज वी ऑल नो कि जॉर्ज ऑरवेल जो है उन्होंने एज अ इंपीरियल पुलिस ऑफिसर जो है वो वर्क किया था उन्होंने कहाँ पे, बर्मा में. और he realizes that if he is going to falter, he will let down the guise of power, not only the power but he will give an opportunity for the people, to the people to laugh at him. वो एक अपॉर्चुनिटी दे देगा लोगों को उसके ऊपर लाफ करने की. ही इज ओनली अफ्रेड ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन बाय द बर्मीज पीपल. दस ही गेट्स डाउन एंड फायर्स एट द elephant. As soon as he hits the elephant, and there comes a roar from the crowd, but the elephant doesn't die.
एलिफेंट की डेथ नहीं होती है, ठीक है, एलिफेंट की डेथ नहीं होती है। एक बार जब वो गोली मारता है तो उसकी वजह से एलिफेंट, ऑब्वियस सी बात है तो कि एलिफेंट कितना ह्यूज एनिमल है, तो एक गोली से तो एक बुलेट से तो ऑब्वियसली नहीं ही मरेगा। तो वो बोलता है कि उस बुलेट से वो नहीं मरता है, ही शायद सर पे मारता है उसके गोली वो, ठीक है। Then he fires again and this time bring it slowly to its knees but he is alive. वो knees पे आ जाता है लेकिन अभी भी जो वो हाथी है वो जिंदा है and it takes a long time to die. और ये काफी लंबा टाइम लगता है उसको मरने में, काफी लंबा टाइम लगता है। और हेंस द एलिफेंट टेरिबली सफर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि 2-3 बार जब वो उसको बार बार यू कैन से कि बार बार बुलेट जो है वो मारता है अपनी राइफल से, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी डेथ नहीं होती है, उसको बहुत सफर करना पड़ता है फ्रेंड्स, उस हाथी को बहुत सफर करना पड़ता है। एंड द पीपल वर अवेटिंग फॉर द मीट, और लोग जो है वो अवेट कर रहे थे, मीट स्टील करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि वो मारे और वो लोग क्या करें, उस मीट को, एलिफेंट के मीट को वो लोग ले जा सके। ही लर्न्स दैट इट टुक मिनिमम हाफ एन आवर फॉर द एलिफेंट टू डाई। फिर उसको बाद में पता चलता है कि लगभग आधा घंटा जो है वो लग गया था उस एलिफेंट को मरने में। और देन देयर इज अ काइंड ऑफ डिस्कशन अमंग द अदर पुलिस ऑफिसर्स। ऑब्वियस सी बात है, उसने एलिफेंट को मारा है तो डिस्कशंस तो होंगे ही, तो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं, कुछ कहते हैं कि ये उसने गलत किया है, कुछ कहते हैं कि उसने सही किया है एलिफेंट को शूट करके। सम कंसिडर्स दैट इट्स अ शेमफुल डीड, ये एक बहुत शेमफुल डीड है। क्यों? क्योंकि टू शूट एन एलिफेंट जस्ट बिकॉज ही किल्ड बर्मीज कूली। और कुछ ऑफिसर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो बोलूंगी मैं कि जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि एक बर्मीज कूली को उसने मार दिया उस एलिफेंट ने, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू हैव शूट, मतलब आपने एक एलिफेंट को मार दिया, तुमने शूट कर दिया एलिफेंट को, यू हैव किल्ड एन एलिफेंट जस्ट बिकॉज ऑफ अ कूली, और जस्ट बिकॉज उसने एक थोड़ा सा हैवॉक क्रिएट कर दिया। तो दिस इज द ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल। आई होप you have enjoyed the video, and please like and subscribe this channel, English with Rimchim Kinsaria. We will meet in the next class. Till then, have a nice day and be happy and safe. Thank you very much.